السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہم امیٹی پارٹی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارا ٹاپک ہے جو کلاس سیونتھ ہے. سبجیکٹ انگلش. پیج نمبر 23 آپ نکالو گے. یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. یس ٹو پلیز سیٹ الائس. تو الائس سے کہنے لگی ہاں آپ شروع کرو. آپ ہمیں ایک کہانی بولو. اینڈ بی کوئک اباؤٹ اٹ ایٹ دا ہیڈر اور یو ول بی اسلیپ اگین بفور اٹ از فنشڈ. تو ہیڈر سے کہنے لگا ہاں آپ جلدی کرو. آپ ہمیں ایک کہانی بولو. اور اگر آپ جلدی نہیں کرو گے تو شاید آپ کو پھر سے نیند پڑے گی. کیونکہ وہ جو ڈورموس ہے وہ زیادہ تر سوتا رہتا تھا. تبھی ہیڈر نے اسے ایسا کہا. Once upon a time there were three sisters. The Dormouse began in a great hurry and their names were Elsie, Lucy and Tilly and they lived at the bottom of a well. تو اب ڈورموس نے سٹوری بولنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ایک دفعہ 3 بہنیں تھیں. اس نے جلدی میں یہ شروع کی. اینڈ دیئر ان کے نام تھے ایلسی, لوسی اینڈ ٹیلی. اینڈ دے لیوڈ ایٹ دا باٹم آف دا وال. وہ کنویں کے نیچے رہتے تھے. ویل مینس کنواں. What did they live on? said Alice, who always took a great interest in the question of eating and drinking. تو الائس کو ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ سوال پوچھتی رہتی تھی کھانے پینے کے بارے میں. تو یہاں پہ بھی اس نے اس سے پہلے ہی جب بھی اس نے شروع کی کہانی بولنا تو اس نے سوال کیا کہ وہ کس پہ زندہ رہتے تھے. They lived on honey, said the Dormouse after thinking a minute or two. تو ڈورموس نے اس سے کہا کہ وہ شہد پہ زندہ رہتی تھی. وہ کیا کرتے تھی وہاں پہ؟ وہ ہانی کھاتی تھی, وہاں پہ شہد کھاتی تھی. They could not have done that, you know, Elias gently remarked. They would have been ill. تو Elias نے اسے کہا کہ اگر وہ ایسا کرتے تو وہ پھر بیمار ہو جاتے. وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. سو they were, said the Elias. تو ڈورموس نے کہا ہاں وہ تو بیمار تھے. Very ill. بہت زیادہ بیمار تھے. Elias was puzzled. She could not imagine how girls could live at the bottom of a well. تو الائس تھوڑا سی حیران ہو گئی, وہ پزل ہو گئی. وہ یہ اندازے بھی نہیں لگا سکتی تھی کہ یہ جو گرلز تھی, لڑکیاں تھیں, وہ کیسے جو ہیں کنویں میں رہ سکتی تھی. ٹیک سم مور ٹی, دا مارشیئر سیڈ ٹو الائس ارنیسٹلی. تو مارشیئر نے الائس سے کہا, اسی اسنا میں جو مارشیئر نے اس سے الائس سے کہا آپ اور چائے لے لو. I had nothing yet, Elias replied in an offended tone, so I can't take more. الائس نے اسے کہا یہاں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کیا مجھے آفر کر رہے ہو چائے اور لینے کے لیے. You mean you can't take less. تو ہیڈر نے کہا اچھا آپ کا مطلب ہے آپ کم نہیں لوگے. It is very easy to take more than nothing. بہتر ہے کہ آپ تھوڑا زیادہ لے لو. nothing سے تو کچھ تھوڑا سا زیادہ لینا ٹھیک ہے. Nobody asked your opinion, said Elias. تو Elias نے اسے کہا ہیڈر سے کہا آپ کو کس نے رائے دینے کے لیے نہیں بولا. Who is making personal remarks now? The hatter said. اب ہیڈر اسے کہنے لگا آپ مجھے بولو Elias کہ پرسنل ریمارکس کون کر رہا ہے, اب کون پرسنل کومنٹس کر رہا ہے. تو Elias did not quite know what to say to this, so she helped herself to know and then turned to the Dormouse and repeated her question. تو Elias کو سمجھ نہیں آ رہا اس کا جواب کیا دوں, تو اس نے چپکی اختیار کر لی. تو وہ خاموش رہی اور پھر سے اس کو سوال بولنے لگے ڈورموس کو. Why did they live at the bottom of a well? تو وہ کنویں کے نیچے کیوں رہ رہے تھے وہ 3 بہنیں. ڈورموس began took a minute or two to think about it and then said it was a honey well. تو ڈورموس پھر سے 1-2 منٹ تک سوچنے لگے. think means سوچنا. تو کہنے لگے یہ تو شہد کا کنواں تھا. There was no such. Elias was beginning to see very angrily, but the hatter and the marshal went to shishi. Elias پھر سے جو ہے اس کو بڑے غصے سے کہنے لگی کہ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے, وہ کیسے رہ سکتے تھے وہاں پہ زندہ رہ سکتے تھے. تو مارج اور ہیڈر اور مارشیئر کہنے لگے شیشی. ڈورموس نے پھر سے بولا you can't be polite, you would be better finish the story for yourself. تو ڈورموس نے اسے کہا کہ اگر آپ اچھی طرح سے نہیں سنو گے, اگر آپ
पोलाइटली से नहीं सुनोगे तो बेहतर है कि इस कहानी को हम ख़त्म करें। नो प्लीज़ गो ऑन, एलाइस सेड, आई विल नॉट इंटरप्ट यू अगेन। एलाइस ने उससे कहा, नहीं नहीं आप कंटिन्यू करो, मैं आपको फिर से नहीं रोकूंगी। इंटरप्ट मीन्स रोकना। द डॉर्मोस एग्रीड टू गो ऑन एंड सो दीज थ्री सिस्टर्स दे वर लर्निंग टू ड्रा, यू नो। तो डॉर्मोस फिर से शुरू अपनी कहानी जो शुरू करने लगा और कहने लगा, जो जो तीन बहनें थी ये क्या कर रही थी, ड्राइंग सीख रही थी। यू नो, आपको पता है, वाई डिड दे ड्रा, सेड अलाइस। तो अलाइस ने इससे कहने लगा कि वो ड्रा क्यों कर रहे थे, वो क्यों खींच रहे थे, ड्राइंग क्यों कर रहे थे। सेड अलाइस क्वाइट फॉरगेटिंग हिज प्रॉमिस। फिर से वो भूल गई अपना वादा उसने किया था कि मैं बीच में नहीं रोकूंगी। फिर से उसने इसको सवाल किया, क्योंकि अलाइस को आदत थी कि वो सवाल करती रहती थी। होनी होनी, सेड द डोरमास। तो डोरमास ने इसे कहा कि वो क्या ड्रा कर रहे थे, होनी ड्रा कर रहे थे। एलाइस डिड नॉट विश टू ऑफेंड द डोरमास अगेन, सो शी बिगन वेरी केयरफुली, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। तो एलाइस जो है वो नहीं चाहती थी कि वो फिर से इसको इंटरप्ट करे, फिर से उसको रोके। तो इसने बड़े होशियारी से अब वो सुनने लगी और कहने लगी कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। वाई डिड दे ड्रा द होनी फ्राम, वो कहाँ से होनी शहद को ड्रा कर रहे थे, वो कहाँ से खींच रहे थे शहद को। यू कैन ड्रा वाटर आउट ऑफ ए वाटर वेल। तो डोरमोस ने इसे कहा कि जैसे आप क्या करते हो, जो वाटर वेल होता है, कुआं का पानी, जो कुआं होता है जिसमें पानी होता है, आप वहाँ से पानी निकाल सकते हो। सो इफ़ यू इफ आई थिंक यू कुड ड्रा होनी आउट ऑफ द होनी वेल। तो इसी तरह से आप होनी वेल में भी होनी निकाल सकते हो, यानी कि आप होनी जो शहद का जो कुआं है उसमें से आप शहद निकाल सकते हो। कुड नॉट यू, क्या आप नहीं निकाल सकते, बट दे वर इन द वेल, एलाइस सेड द डोरमास। तो एलाइस ने इससे कहा, लेकिन वो तो कुएं में थी, वो कैसे निकाल सकते थे। ऑफ कोर्स दे वर, सेड द डोरमास, इन द वेल। तो डोरमोस ने इसे कहा, हाँ बिल्कुल वो कुएं में थे। द आंसर सो कन्फ्यूज्ड पोर एलाइस दैट शी लेट द डोरमोस गो ऑन फॉर सम टाइम विदाउट इंटरप्टिंग हिम। तो ये जो इसका सवाल जवाब था डोरमोस का, वो थोड़ा सा इसको कंफ्यूज कर गई, वो परेशान, वो तो हैरान हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था एलाइस को कि ये क्या बोलने लग रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो उसने इसको अब उसको बीच में इंटरप्ट रोका नहीं। अब वो इसकी बात जो है सुन रही थी, उसको इंटरप्ट नहीं किया। दे वर लर्निंग टू ड्रा, द डोरमस वेंट ऑन yawning एंड rubbing हिज आइज। तो वो फिर से कहने लगा, जो डोरमस है वो कहने लगा कि वो क्या सीख रही थी, ड्रा करना सीख रही थी, यानी कि वो खींचना सीख रही थी। तो वो यावनिंग करने लगा, वहाँ जमाई, उसने जमाई ली और अपनी आँखों को रगड़ा। और फिर जो है इट वाज वेरी स्लीपी, और कहें फॉर इट वाज वेरी स्लीपी, और उसको अब थोड़ी सी नींद भी आने लगी। एंड दे ड्रू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एवरीथिंग दैट बिगन विद द एम। तो वो और कहने लगा, डॉर्मोस से कहने लगा, उन्होंने सब तमाम चीज़ें जो हैं वो ड्राइंग की। क्या क्या बनाया उसने, एक तो जो वो तीन चीज़ें जो एम से शुरू होती हैं, वाई विद द एम। तो एलाइस ने उससे कहा कि उन्होंने एम से क्या ड्रा किया, वाई और एम से क्यों इन्होंने ड्रा किया। तो वाई नॉट, सेट द मार्शर। तो मार्शर ने उससे कहा, क्यों नहीं, वो क्यों नहीं एम से शुरू कर सकते, वो क्यों नहीं एम से ड्रा कर सकते हैं। एलाइस वाज साइलेंट। तो एलाइस ने फिर से जो है खामोशी अख्तियार कर ली। डॉर्मोस हैड क्लोज्ड हिज आइज एंड वाज गोइंग ऑफ टू स्लीप। तो डॉर्मोस ने इसी असना में जो डॉर्मोस ने अपनी आंखें बंद की तो सोने लगा। बट द हैटर पिंचड हिम। तो हैटर ने इसे फिर से पिंच किया और उसको जगाया। तो डॉर्मोस को थोड़ा सा क्या, वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा वो रोने लगा और फिर आपने जो है कहानी फिर से शुरू की। दैट बिगन्स विद द एम सच एज माउस ट्रैप एंड द मून एंड मेमोरी एंड मचनेस। तो इसने कहा ऐसे कि जो एम से क्या क्या शुरू किया, जैसे माउस ट्रैप होता है, जैसे मून होता है, एंड मेमोरी एंड मचनेस, और भी बहुत से। You say things are much of the muchness. Did you ever see such a thing as a drawing of muchness? तो अलाइस उसको फिर से बोलने लगी कि आप बोल रहे हो कि मच ऑफ मचनेस, आपको पता है कि आप मचनेस को ड्रा कर सकते हो, उसकी ड्राइंग आप कर सकते हो। रियली नाउ यू आस्क मी, सेड अलाइस वेरी मच कंफ्यूज्ड, आई डोंट थिंक आई हैव। तो तो
एलाइस कहने लगी कि सच में आप मुझसे पूछ रहे हो। तो वो थोड़ी सी हैरान हो गई, वो कंफ्यूज हो गई, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। देन यू शुड नॉट टॉक सेड द हेडर। तो हेडर वहाँ से बोलने लगा उसे, फिर तो आपको बात नहीं करनी चाहिए थी। दिस पीस ऑफ रूडनेस was more than Elias could bear. She got up in a great disgust and walked off. तो ये जो जो रूडनेस दिखा रहे थे ये तीनों, तो ये एलाइस को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो उठी और वहाँ से चली गई। द डॉर्मोस फेल asleep instantly and neither of the others took any notice of her गोइंग। तो डोरेमोस को इसी असना में फिर से नींद पड़ गई। वो जो बाकी हैडर और मार्शियर और हैडर था, उन्होंने उसको जानने की जो वो जानने लगी, तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देने लगे, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। शी लुकड बैक वंस ट्वाइस। तो वो फिर से पीछे देखने लगी। एलाइस हाफ होपिंग दे वुड कॉल आफ्टर हर बट दे डिड नॉट। उसको ये यकीन था कि शायद वो मुझे वापस बुला लेंगे, लेकिन उन दोनों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। द लास्ट टाइम शी saw them they were trying to put the doormost into the teapot। तो जब लास्ट बार उसने पीछे मुड़ के देखा, तो वो क्या कर रहे थे, वो डोरमोस को बर्तन वो जो टी सपोर्ट होता है उसमें डालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो है लिखी है, ये किसने लिखी है, लुइस कैरल ने। तो इसी तरह से जो है हमारा जो आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आप इनके इनके हम टेक्सटाइल क्वेश्चंस करेंगे और ग्रामर वर्क करेंगे।